Hello everyone, welcome to the class. In today's session, we'll be solving question number 28 given on page number 6.57, page number 6.57 from the book T.S. Gariwal, chapter Retirement of a Partner, and this T.S. Gariwal's 2020 edition. Now let me tell you that what is this question all about. In this question, there are three partners, Ram. I'm going to write the first alphabet of the names of the partners, Ram, Lakshman and Bharat. There are three partners, Ram, Lakshman and Bharat, and they were sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. So this is their old profit sharing ratio. They are sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at the value 1,80,000. That means the value of purchased goodwill that is shown in the books of accounts, that means on the asset side of the balance sheet, it is given to us in the question at rupees 1,80,000. Now Lakshman, that is L, retires, and at the time of retirement, goodwill is valued at 2,52,000. So that means this information is given about the self-generated goodwill. This is the goodwill which is valued on the date of retirement of the partner L. So we say that this is self-generated goodwill of the firm, and the value of this self-generated goodwill is your 2,52,000. 2,52,000. Then the question says that after L's retirement, R and B, they decided to share future profits in the ratio of 2:1. So the new ratio between R and B is 2:1. They have decided that they are going to share the future profits in the ratio of 2:1. The profit for the first year after L's retirement amount to rupees 1,20,000. So profit of the firm after L's retirement. After L's retirement, it is given to us in the question as हमें दिया हुआ है 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है. Now in this question, we have to pass the necessary journal entries to record goodwill and to distribute profits and to show the necessary calculations. Now beta, first of all, in the question, this purchase goodwill is given. So according to accounting standard 26, at the time of reconstitution of the partnership, this purchase goodwill is not to be shown in the books of account. So this goodwill is to be written off. So the first step will be to write off purchased goodwill. To write off purchased goodwill. Obviously, when we are going to write off this purchased goodwill, that is to be written off among all the partners in their old profit sharing ratio. तो जब बेटा हम राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं. गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो गुडविल को हम क्रेडिट करते हैं. हमारी एंट्री बन जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. हमने तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए गुडविल राइट ऑफ करने के लिए.
फाइन, कितने रेशियो में? ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में. Goodwill is to be written off in the old profit sharing ratio which is equal to 3:2:1 और गुडविल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा. सो मेरी एंट्री बन गई, A कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, L कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. अमाउंट देख लेते हैं. गुडविल की अमाउंट थी 1,80,000. 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6. अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कराती हूँ, सो 1,80,000 आपके आर का शेयर हो गया 3/6 एंड 3/6 मीन्स 90,000. 3/6 of 1,80,000 is, if I'm going to solve it, so this is 90,000 and the share of L will be 3/2/6, 2/6 and this will be, if I'm going to solve it, which is equal to rupees 60,000. Fine. So L's capital account will be debited by 60,000 and if I'm going to take out the share of B, it is going to be 1,80,000 into 1/6 which is equal to rupees 30,000. So B's capital account will be debited by 30,000. So total goodwill of rupees 1,80,000 is written off. Fine. So the first step is complete. Now let's do the treatment of self-generated goodwill. For that we require gaining ratio and we know that कि R और B L की रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:1 में शेयर कर रहे हैं. ये हमारी न्यू रेशियो है. तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं और हमें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है. गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. आर की न्यू रेशियो 2/3 है और ओल्ड रेशियो आर की 3/6 थी. मैं एलसीएम लेती हूं तो एलसीएम आ गया 6. 6 डिवाइड बाय 3 2 2 2 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1/6 और बी का अगर मैं गेनिंग रेशियो निकालू, न्यू रेशियो इज 1/3 माइनस बी का ओल्ड रेशियो इज 1/6. एलसीएम इज 6. So 6 divided by 3 is 2, 2 into 1 is 2 minus 1 which is equal to 1/6. तो जो गेनिंग रेशियो हुई हमारी, गेनिंग रेशियो in between R and B is equal, that is 1:1. अब क्योंकि R और B गेन कर रहे हैं तो सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होगी, जो आर एल का शेयर निकलेगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द फर्म में, वो आर और बी इक्वली एल को देंगे. तो अगर मैं देखूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 2,52,000. सेल्फ जनरेटेड वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,52,000. ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो मैं इसमें एल का शेयर निकालूं. एल्स शेयर of goodwill will be, L का जो share in profit था that was 2/6. so goodwill में भी L का share 2/6 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. I am going to solve it. 384,000. Fine. So L को 84,000 शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा और देंगे कौन? ऑब्वियसली आर और बी. किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में. सो माय नेक्स्ट सेकेंड एंट्री टू बी रिकॉर्डेड इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर गिविंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of your self generated goodwill of the firm, the amount will be, the entry will be R's capital account, क्योंकि R ने देना है, ये गेन कर रहा है. R's capital account debited, B's capital account debited, B ने भी देना है, ये भी गेन कर रहा है, debited. 2
किसको देना है? एल को, क्योंकि एल रिटायर हो रहा है, एल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। टू एल्स कैपिटल अकाउंट, ये गेनिंग रेशियो इक्वल है, सो आर का कैपिटल अकाउंट 42,000 से डेबिट होगा, बी का कैपिटल अकाउंट 42,000 से डेबिट होगा, एंड एल्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 84,000. Now the profit which is given in the question, it is after the retirement of L. L की रिटायरमेंट के बाद फर्म का प्रॉफिट हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो दिया है वो दिया है 1,20,000 का. अब बेटा ये प्रॉफिट तो आर की रिटायरमेंट के बाद हुआ है, तो ये जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं आर और बी, इन्हीं में डिवाइड होगा. किस रेशियो में? फिर न्यू रेशियो में ही डिवाइड होगा. और जब भी हम प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज डन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो एंट्री विल बी, आप रिकॉल कीजिए फंडामेंटल चैप्टर, जब भी हमने प्रॉफिट को, नेट डिविजिबल प्रॉफिट को डिवाइड करना होता है तो हमारी एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हम प्रॉफिट एंड लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पार्टनर्स को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो आई विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट. अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है किस रेशियो में? क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद है तो आपको प्रॉफिट न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज 2:1. तो अगर मैं ये टोटल प्रॉफिट 1,20,000 न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 80,000 से और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द solution of question number 28. Now the next doubt question which we have received is your question number 29. Question number 29 given on the same page, page number 6.57 from the chapter Retirement of a Partner, book P.S. Grewal, 2020 edition. Now see what we'll be doing. There are many points in this question. We'll be simultaneously solving. I'll be writing the extract of the question and simultaneously solving each of the point. The question says that partnership deed of C and D. Two partners are there. The partnership deed of C and D who are equal partners. That means the profit sharing ratio among these two partners are equal, 1:1. Has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving 6 months notice in writing. यानी कि दोनों में से कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है. कब रिटायर हो सकता है? किसी भी टाइम पे हो सकता है, लेकिन जिस पार्टनर ने रिटायर होना है उसको फर्म को 6 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा. 6 महीने पहले उसको बताना पड़ेगा कि 6 महीने के बाद वो पार्टनर रिटायर हो रहा है. और जब वो रिटायर होगा, द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड. उसको क्या क्या मिलेगा? पहली चीज जो पार्टनर को मिलेगी वो मिलेगी अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल एंड करंट अकाउंट. ठीक है, जो भी उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में अगर कोई बैलेंस होगा, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा. Then his share of profit to the date of retirement calculated on the basis of average profit of last 3 preceding completed years. उसको क्या मिलेगा? थर्ड जो पॉइंट है उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा. रिटायरिंग पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा. अच्छा, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट
कब तक का मिलेगा? टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब इसमें तो वो कभी भी रिटायर हो सकता है ना बेटा। लेट से अगर वो 31 मार्च को कह रहा है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 अक्टूबर को रिटायर हो जाऊंगा, तो जो 6 मंथ्स के लिए उसने फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट वो लेके जाएगा। फाइन। और उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोविजन है? उन्होंने बोला कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाने बैठेंगे नहीं, हम प्रॉफिट इस पर्पस के लिए कैलकुलेट करेंगे on the basis of average profit of last average profit of last 3 preceding complete years, average profit of last 3 years, पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट हुए हैं उनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ जाएगा। तो टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो बनेगा, वो लेके जाएगा। फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि और क्या लेके जाएगा? हिज शेयर हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कितनी गुडविल? क्योंकि जो भी पार्टनर होगा उसका हाफ शेयर है, तो वो शेयर ऑफ गुडविल भी लेके जाएगा। ठीक है, उसका जो शेयर होगा ऑब्वियसली हाफ शेयर ही होगा, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.5 times the average profit of the 3 preceding complete years. Again, average profit of last 3 years जो भी होंगे, तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 1.5 होंगे, गुडविल निकल आएगी, गुडविल में उसका शेयर हाफ होगा। देन क्वेश्चन कह रहे हैं सी, यानी कि जो हमारा ये पार्टनर सी है, C gave the notice on 31st of March 2019 to retire on 30th September 2019. 6 महीने पहले उसने नोटिस दे दिया। C ने नोटिस दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, नोटिस वाज सर्व ऑन 31st of March 2019, और उसने क्या बोला? 6 महीने पहले देना था कि मैं रिटायर होना चाहता हूं और हो जाऊंगा ऑन 30th सितंबर, 6 महीने बाद 2019। Fine. When the balance of his capital account was 6,000, तो obviously 6,000 उसका कैपिटल अकाउंट था, तो वो 6,000 अपने कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लेके जाएगा। एंड his current account had a debit balance of 500. डेबिट बैलेंस ऑफ 500 का मतलब क्या हुआ कि सी ने फर्म को 500 देने थे। ठीक है, तो जो भी हमारा अमाउंट निकलेगा हम उसमें से 500 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। Then profit of the last 3 preceding completed years ended on 31st of March. अब मेरे पास क्वेश्चन में जो लास्ट 3 completed years preceding 31st of March 2019 है, तो मेरे पास 2017, 31st March 2017, 31st March 2018 और 31st March 2019। फाइन। इनके मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दे रखे हैं एंड द प्रॉफिट्स आर 2800, देन इट इज 2200, देन इट्स 1600। ठीक है, ये इन 3 इयर्स के मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं। अब कैपिटल अकाउंट मुझे पता चल गया, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मुझे पता चल गया, अब मुझे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। वो कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स के अकॉर्डिंगली उसका प्रॉफिट निकलेगा। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इन तीनों सालों के प्रॉफिट का सम निकाल लेंगे। सो दिस इज, इट इज 6600, फाइन, द टोटल इज 6600 टोटल प्रॉफिट। और अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6600 divided by number of years, which is equal to 3, which is equal to 2200. So average profit is 2200. तो अगर average profit of 1 year is 2200 और जो C है वो रिटायर होगा 6 months के बाद, तो 6 months का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? So this is the profit for 1 complete year, क्योंकि ये सारे एनुअल प्रॉफिट्स दिए हुए हैं।
this is the profit of one complete year. So 6 months profit of the business will be 6 months profit of the business will be 2200 into 6 divided by 12, which is equal to rupees 1100. फाइन बेटा, तो 1100 आपका बिजनेस का प्रॉफिट आ गया 6 मंथ्स का. अब इसके अंदर जो रिटायरिंग पार्टनर सी है उसका कितना शेयर है? हिज शेयर इज जस्ट हाफ. सो सीज शेयर इन प्रॉफिट्स, C's share in profits will be calculated as, there is no space, let me erase this portion. So C's share of profit, C's share of profit rather in 6 months profit है ना, बिकॉज उसने 6 months का नोटिस दिया था. 6 months का प्रॉफिट 1100 है, तो सी का शेयर इज हाफ. सो हाफ ऑफ 1100 इज इक्वल टू रुपीज 550. तो थर्ड भी हमने कैलकुलेट कर दिया. ही इज गोइंग टू गेट रुपीज 550 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट इज the last thing, that he is going to get the share of goodwill also, and obviously his share is half. So first calculate the value of goodwill. Goodwill is average profit of last 3 years. ये हमने calculate कर रखा है. That is 2200, and 2200 into 1.5. 2200 into 1.5 will give me the value of goodwill of the firm. So goodwill will be calculated as average profit 2200 into 1.5, which is equal to rupees 3300. So this is the value of the goodwill of the firm. This is the value of the goodwill of the firm, and C's share in goodwill will be, C's share of goodwill will be just half of the total goodwill of the firm. So C's share of goodwill will be half of the total goodwill of the firm, which is 3300. It is equal to rupees. Yes, if I'm going to solve it, I'm going to get 1650. So the total amount share of goodwill is 1650 to be received by the retiring partner as his share of goodwill. So the last step is to calculate the amount due to the retiring partner, that is C. So he'll be getting 6000, the credit in his capital account. He'll be getting, this is the capital, he'll be getting the share of profits, and this is 550. Then he will be getting the share of goodwill, and this amount is 1650. So if I'm going to add them up, I'm going to get 8200, and from this 8200 बेटा फर्म ने सी से 500 लेना भी था, क्योंकि सी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. सो लेट्स सबट्रैक्ट दिस 500. अगर मैं इस 500 को सबट्रैक्ट करती हूँ तो टोटल अमाउंट 7700 is due to the retiring partner. This total amount 7700 is going to be due to the retiring partner, and this is the required answer. I hope that the solution is clear to all of you.